Good morning, viewers. And today we are so lucky to have a very senior professor, as he's fondly known, YSN Sir, Yogeshwar Nandanwar Sir. And Sir, before we talk so much with you, I want you to introduce yourself. Thank you, Richa, for calling on this platform. Really, all these things should be known to each and every person, not only the lactating woman, but breastfeeding is a really basic of our words. Now, whatever the civilization is going on, before the start of this earth and the human being, there is a classification like a mammals who gives the young one birth. And the breastfeeding is only the that is inborn thing. But so many years the people were under the impression and because of multiple things. Basically, I feel this is a marketing gimmick. I wanted to sell my product. So I will just advertise and tell something good about it. And as slowly the people will pick it up and civilization, modernization, what's the Western culture, something that really ruined all these practices. Sir, we will talk about in great detail about कि what is the benefit of breastfeeding, मतलब स्तनपान के अपने क्या फ़ायदे हैं. But before we get there, I really want to know where you did your undergraduate, postgraduate, and since how many years you have been teaching. And so I'll introduce something myself as a short one, a person working for the woman, by the woman, because my mother made it. My wife is really giving a really support in the life. My daughter is there. But beyond that, where I have worked, I graduated myself in the Nagpur University, Government Medical College. I did my undergraduate, postgraduate there, and I have seen the rural and urban both the people. So you have a vast experience. Around 42 years I am in the teaching, this field. So after my post-graduation, I went to the Sevagram, that is a rural medical college. Really speaking, it's a Gandhi's place and really nice. And it's all villagers with the bad weather, with poverty, all people we have seen there. Then I entered in the government service and work in the 3 medical college. Nagpur 2 colleges, one is in Miraz one. And I work in Ayurvedic college also as a vasectomy surgeon during Rajiv Gandhi, Sanjay Gandhi era as a vasectomy surgeon. So my experience about the multiple places is there which add on my knowledge. सर, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, हर तरह के विमेन को देखा आपने, अर्बन का भी देखा और जो गांव दूर दराज सब तरह के. तो मुझे ये जानना था कि नॉर्मली जो पेशेंट एक्सपेक्टिंग है, जो प्रेग्नेंट है और बहुत उसके पास कुछ फैंसी नहीं है, तो वो अपने खान पान का ख्याल कैसे रखे? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, बट बेसिक ही तो ज़रूरी है हमें जी. हमें जो मॉडर्न दुनिया है उसके कारण हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गया था. बहुत मतलब इट वॉज अबाउ द 100. नाउ वी कुड अचीव एट 27.6% नाउ पर 1000 लाइव बर्थ. एंड वाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा? सो सब लोगों ने इसके लिए ट्राई किया. डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने तो किया है, सोसाइटी ने किया, बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया. 6 महीने का लीव दे दिया, पेड लीव दे दिया. एंड इनिशिएटिव उनका टीचिंग जो होता है, ऐसी मटेरियल जो होता है वो बताया. कई सारे तो हमारे बेस्ट बसेस में लिखा है ऐसा हिरकणी, इसकी बसेस पे लिखा है हिरकणी. सो दीज आर ऑल गवर्नमेंट इनिशिएटिव अलॉन्ग विद द यूनिसेफ, WHO एंड नासिक यूनिवर्सिटी. तो हमें डे टू डे में तो ध्यान ही नहीं आता कि गवर्नमेंट ने कितना इसको प्रमोट किया. बहुत कुछ किया गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट वांटेड टू रिड्यूस द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मतलब जो बच्चे 1 साल से कम के एज के होते हैं. जी सर, तो हम लोग पूछे अगेन, हम जानना चाहते थे कि कोई औरत है, लेडी हैं और वो प्रेग्नेंट हैं फर्स्ट टाइम, तो वो अपने खान पान का कैसे स्पेशल ख्याल रखें जो नॉर्मली घर में अवेलेबल है? थैंक यू. उसमें क्या होता है मैडम, पहले अंडा की मुर्गी ऐसी बात हो रही है अभी. तो अगर पेट में पलने वाली बच्ची अगर अच्छी बनती है तो माँ अच्छी बनेगी. अगर वो यंग चाइल्ड है, सारा उसका इम्यूनाइजेशन हो गया, उसका पढ़ाई लिखाई हो गया, उसको अच्छे से एनवायरनमेंट मिला, खान पान अच्छा मिला, तो होने वाली माँ अच्छी होगी. गवर्नमेंट ने उसके लिए भी किया, शादी का उम्र भी तय कर दिया, पोस्को एक्ट में भी और कुछ करा दिया. ये सारा चीज़ें गवर्नमेंट तो कर रही है, बट हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी बेटी को और बेटे को डिफरेंस ना करें जी. उसका अगर खान पान अच्छा रहेगा तो अच्छी माँ बनेगी. अभी जब भी प्रेगनेंसी आएगी या शादी आएगी तो उसके लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरी है. हु कैन मैरी, व्हेन कैन मैरी,
अभी तो थोड़ा सा ट्रेडिशन और एक्स्ट्रा हो रहा है कि मैरिज बहुत लेट हो रहे, जी। बहुत लेट होने से बच्चे कम हो रहे, वैसे भी लोगों को बच्चे कम चाहिए, तो हमें चाहिए कि बच्चा हेल्दी हो। करेक्ट। और ये हेल्दी बच्चा होने के लिए अगर प्रेग्नेंट माँ अच्छी है तो यही अच्छी हुई, तो उसको क्या करना चाहिए, जैसा ही प्रेगनेंसी है वो प्लान होना चाहिए, अनप्लान नहीं होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे ही वो प्लान करेगी प्रेगनेंसी, उसके पहले उसको कोई बीमारी ना हो, उसको हेल्दी होना चाहिए। और हेल्थ का डेफिनेशन तो हम ऐसा करते हैं कि जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल इज एडेड, इकोनॉमिकली इज ऑल्सो एडेड। तो अगर स्टेबल है तो दे विल एक्सेप्ट दैट प्रेगनेंसी। जी। जैसे ही प्रेगनेंसी आ जाती है उसके पहले उसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर है, मीन्स वो हरी चीज़ें नहीं खाती है, जो भी ग्रीन है, जैसे अपना कोरिएंडर हो गया, कोथिम्बीर है, उसमें तो काफ़ी अच्छा फोलिक एसिड है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको घर का खाना ही पसंद नहीं। आई एम ए फादर ऑफ 2 किड्स, सो आई नो दैट व्हाट इज हैपनिंग। सो एग्जैक्टली घर का खाना नहीं खाएगी, बाहर का खाना खाएगी तो डेफिशिएंसी पक्का होने वाला है जंक फूड से। तो उसका खान पान प्री प्रेगनेंसी भी अच्छा हो, 4 महीने पहले उसको फोलिक एसिड भी मिले, तो बच्चे का न्यूरल ट्यूब अच्छा हो जाएगा, दिमाग अच्छा हो जाएगा, ब्रेन अच्छा चलेगा। ये पहली बात। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है शुरू में उसको डायग्नोस करना है कि इंट्रायूटेराइन है कि नहीं है, बिकॉज एक्टोपिक इस ज़माने में बिल्कुल उससे मौत नहीं होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन है तो वी एड ऑन द फोलिक एसिड विद देम, वी गिव द गुड डाइट फॉर देम। में थोड़ा नॉशिया वोमिटिंग हो जाता, खान पान की इच्छा नहीं होती, दे डिज़ायर समथिंग डिफरेंट। उसमें एक पाइका नाम का एक होता है, दिमाग में हमारा जैसा असर होता है कि जो चीज़ कभी नहीं खाई वो खाने के लिए होते हैं। हम ये ख्याल करें कि वो हेल्दी है, खाने लायक है, मिट्टी वगैरह नहीं खाने का। ऐसा तो बॉम्बे के बाज़ार में मिट्टी मिलती, खाने वाली मिट्टी, बट वो कितना अच्छा है, इट्स नॉट साइंटिफिक। कैल्शियम का सोर्स पक्का है, और कैल्शियम उस समय नहीं चाहिए हमें। तो पहले से पहला जो 6 वीक्स टू 12 वीक्स है उसको नॉशिया वोमिटिंग होना है। सारा अदरक अगर सूंघ ले, नींबू अगर सूंघ ले, ससुराल में है तो मैके जाए, एनवायरनमेंट बदल दे, कोई अपने जो जो हॉबी है उसमें बिजी रखे, तो खान पान अच्छा होता है। ये देखा जाए कि उसका वजन कम ना हो, अच्छा, न्यूट्रिशन अच्छा मिले, पानी अच्छा पिए। ऐसा भी हमने देखा जो ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं वो 1 बॉटल पानी कैरी करती हैं, तो कम से कम 10 घंटा में 1 बॉटल, विच इज़ रियली ए प्रॉब्लम। हमें तो कम से कम 2.5-3 लीटर पीना चाहिए, तो पानी का ही सोर्स नहीं उसका, उसके कारण भी तकलीफ होता है, खाने की इच्छा नहीं, बट एटलीस्ट पानी तो पिए या कुछ जूस पिए। हमारा ये भी एक्सपीरियंस है कि बाहर जाके जूस लेके आते, 5 रुपये का पहला भर जूस मिलता, गैस्ट्राइटिस हो जाती, फिर एडमिट हो जाते। सो वन शुड टेक ए हेल्दी नाइस फूड। अगर घर का बना है तो बहुत अच्छा है, अगर घर में नहीं बन सकता तो कोशिश करिए। बनने वाली माँ है, बच्चा हमारे घर में आने वाला है, हर एक को बच्चा इंटेलिजेंट चाहिए जी, हेल्दी चाहिए, किसी को बीमार बच्चा नहीं चाहिए, किसी को अनहेल्दी बच्चा या इंटेलेक्चुअली कम बच्चा भी नहीं चाहिए। दिस इज द कॉम्पिटिशन वर्क, तो अभी उसका ख्याल रखोगे तो अच्छा बनेगा। ब्रेन जो हमारा बनता है, पहला 1000 डे का जो कंसेप्ट दिया है WHO ने या हमारे विद्यापीठ ने जो किया है भी, कि पहले 1000 डे मीन्स इंट्रायूटेराइन 9 महीना और अगला साल। अच्छा, ये 2 साल में अगर उसका ख्याल रखो तो उसका ज़िंदगी अच्छा सुधर जाएगा, एंड ही विल बी एबल टू कॉम्पीट एवरीथिंग। दूसरा हमारा और एक गर्भ संस्कार वाला था, कि गर्भ संस्कार मीन्स व्हाट, उसमें भी यही लिखा है कि हम मेंटल एक्सरसाइज करें, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ करें जैसा हमें बच्चा चाहिए। अगर हम गाली गलौज करते हैं, आने वाला बच्चा करने वाला है, बिकॉज द बेबी लर्न एवरीथिंग। हमारा अभिमन्यु ने वही सीख के आया था ना, जो स्टोरी बताया था वो सीख लिया उसने, और वैसे ही बच्चा बना। सब माँ को अच्छा बच्चा चाहिए, तो उसने कभी बुरा नहीं सोचने का, बुरा नहीं करने का, बुरा नहीं देखने का। गांधी जी के जो 3 बंदर थे बहुत अच्छे थे, बट अभी एक चौथा बंदर भी आ गया मैडम, मोबाइल वाला। एवरीबडी इज इन द मोबाइल, किससे बात नहीं करने का, तो स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होगा। कहीं भी जाते हो, घर में बैठे तो मोबाइल है, और उससे जो रेडिएशन मिलता है, एटलीस्ट कम से कम हीट तो होता है। मेरा ऐसा भी है कि अगर 2 मोबाइल के बीच में एक अंडा रखो तो कोएगुलेट हो जाता है प्रोटीन। जितना प्रोलॉन्ग आप यूज़ करोगे या जितना उसका सिग्नल कम है, तो तकलीफ देना है, आने वाले बच्चे को तो पूरा देना ही है। जैसे ही उसका ओवुलेशन होता है, मतलब म्योसिस होता है, मतलब उनके गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, उस समय अगर उसको रेडिएशन है तो तकलीफ तो होना ही है, कुछ कंजंक्टिवल एनोमली रहेगी। बड़ा रहा तो हम बच्चा शायद निकाल देंगे, अगर छोटा रहा जो समझ में नहीं आया या मेंटल रहा तो बच्चा बढ़ने वाला है आगे। सो बी कॉशियस अबाउट दिस, ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी जैसा ही बच्चा पैदा हो गया, पहला एक जो है हमारा एक सोनोग्राफी वहाँ होता है, दूसरा हम 11वें-12वें हफ्ते में करेंगे कि बच्चे का न्यूक्ल थिकनेस कैसा है, उसके बाद में उसका 18-20 हफ्ते में कंजेनिटल एनोमली पूरा एनाटॉमी कैसा है, बट फिजियोलॉजी कैसा है ये नहीं कर सकते, ये गॉड ने अपने पास वो रिजर्व रखा है। तो यू हैव टू ट्रस्ट द गॉड। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट द गॉड, सुप्रीम पावर इज देयर समथिंग। जो प्रेयर में ताकत है वो और कहीं नहीं है। वेदर यू बिलीव द गॉड, अल्लाह, भगवान या जो भी है इशू है, बट प्रेयर इज ऑलवेज अ बेटर। इट गिव्स मन का शांति देता है। हमारा जो दिमाग है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, वही तो काम कर रहा है। अब इसको अगर आप अच्छा नहीं रखते हो तो शायद प्रॉब्लम आने वाले हैं। जैसे ही पहला 3 महीना हो गया, 12 वीक्स हो गया हमारा, उसके बाद हमारा खान पान ऐसा इनफ नहीं है कोई भी प्रकार का, कितना भी हेल्दी आप खाते हो। जैसा हर एक का थाली अलग है, भारतीय लोगों में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसा जैन का है वो थाली अलग है, मारवाड़ीज का अलग है, हिंदूज का अलग है, गरीब का अलग है, रीच का अलग है। तो उसमें कोई भी फूड आइडियल है ऐसा नहीं है। बट हमारा ऐसा कहना है कि आप बाज़ार में जैसे ही गए, हरा, लाल, पीला, हर एक रंग का, हर एक साइज़ का, अच्छा, जितना छोटा अनाज उतना सही है अनाज हमारे के लिए। फल के बाहर अगर में गए तो फल में कौन सा है भी, एप्पल इज ए प्लेंटी इन द मार्केट, बट एप्पल तो कश्मीर में बना है, उसको वैक्स पॉलिश किया है, ओके का स्टैम्प लगाया, पेट से टूटने के बाद हम करीबन उसको महीने भर के बाद खा रहे हैं जी, प्रिजर्वेटिव। अगर हम बाजार में बेर का पेड़ ले तो जैसा बेर तोड़ा शाम तक हम खा सकते हैं। द फ्रेश, द लोकली मेड, तुम्हारे ज़मीन में जो बनता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा अभी सीताफल है बाज़ार में, कस्टर्ड एप्पल, पेरू है बाज़ार में, दैट इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम है। ऐसा इमली है बाज़ार में, विटामिन सी का सोर्स है। सो एवरीथिंग अवेलेबल इन लोकल एरिया, वो हमें खाना चाहिए। मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं बहुत सारा मल्टी कलर्ड खाना। मल्टी कलर, मल्टी साइज, मल्टी टेस्ट। करेला भी अच्छा है, मेथी का दाना भी अच्छा है और स्वीट भी अच्छा है। बट अगर हो सके तो पोटैटो और राइस को अवॉइड करिए, बिकॉज हमारा जीडीएम बहुत बढ़ रहा जी, और जीडीएम अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कल जाके आपको डायबिटीज़ होना है। जो दर्शक नहीं जानते, जीडीएम हाँ, मतलब डायबिटीज। जो भी जनीन इसमें ज़मीन के अंदर पकता है, सूरन है, पोटैटोज है, ज़मीन के अंदर वाला, उसको कम कर दीजिए, पूरा बंद नहीं किया तो चलेगा। और जो राइस है आपका, चावल है, वो पॉलिश और मॉडर्न नहीं खाए, गाँव का अपना अनपॉलिश्ड वाला। अनपॉलिश वाला खा सकते हो। सारे रंग की दालें खाइए, सारे रंग की सब्जियां खाइए। सलाड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पानी बहुत पीजिए, कम से कम 2.5-3 लीटर तो पानी हर सीज़न में चाहिए। अगर आप ऐसे रीजन में हैं जहाँ अक्टूबर हीट होती है या समर अलग होता है, तो पानी का मात्रा आधा लीटर कम ज़्यादा कर सकते हो, बट 3 लीटर ऑन एन एवरेज हमें चाहिए। जो खाने का थाली है, उस थाली में एक आइडियल थाली हम प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में पढ़े हैं कि उसको डिवाइड कर दीजिए। उसका करीबन 70% जो है वो शर्करा वाला रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा। अब बचा जो 30% है, इसमें 15% फैट और प्रोटीन ले सकते हो। हम प्रेगनेंसी में एडवाइस करेंगे प्रोटीन को थोड़ा बढ़ा दीजिए और फैट को थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसके बाद अगर डॉक्टर साहब के पास आप जाते हो, इट्स ए कंपल्सरी फॉर ऑल प्रेग्नेंट लेडी। अगर आप नहीं जाते तो आशा घर में आ जाएगी जी, आशा इज एक्रेडिटेड नर्स। अगर आप शहर में हैं तो सीएचवी घर में आ जाएगी। उनको रिकॉर्ड रखना है, उनको स्टैटिस्टिक भेजना है, हेल्थ अथॉरिटी को उनको भेजना है, और वो कंपलसरी आपको आयरन, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन का टैबलेट और कैल्शियम का देने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ख़राब नहीं है, आप खाइए उसको। इनको अच्छा नहीं लगता, वो पैकिंग अच्छा नहीं होता। द सेम टैबलेट, सेम कंपनी, अच्छे पैकेट में, कलरफुल में, अट्रैक्टिव में बेचेगी, महंगा बेचेगी। आपका जैसे खर्चा करना है कर सकते हो। लेकिन किसी सर गवर्नमेंट क्वालिटी कंट्रोल तो बहुत अच्छा रखती है, बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल तो है, डरना नहीं है, वो डरने दवाएं की बहुत अच्छी कोई हैं। बात नहीं है। उसमें फेरस सल्फेट देते हैं आपको। फेरस सल्फेट अगर टॉलरेट नहीं होता तो आप फ्यूमारेट, सक्सिनेट, दूसरा कुछ बाजार से ले सकते हो ड्रग। लेकिन टॉलरेट नहीं होता, जैसे करें, खाना खाने के पहले नहीं खाओ, खाना खाने के 1 घंटा बाद खाओ। हम लोग क्या करते हैं, चाय में बैठते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते के साथ गोली खा लेते, ऊपर से चाय पी लेते, वो आयरन का सब चिलेट हो जाता। करेक्ट। तो ये हम अपने डॉक्टर से भी पूछिए। अभी तो इतना है, थंब पे सारा नॉलेज है जी। तो चाय का और आयरन गोली का झगड़ा होता है। हम लोग क्या करते, लेजी है थोड़ा सा, आयरन की भी खा लिए, कैल्शियम भी खा लिए,
दोनों का अंदर पेट में झगड़ा होने वाला है, तो ऐसा नहीं खाइए। हमारा बहुत पुराना शास्त्र है आयुर्वेदिक शास्त्र। आयुर्वेदिक में जो जो बताया है बहुत झूठ नहीं है। हम तो एलोपैथी वाले, हम आयुर्वेदिक ज़्यादा नहीं जानते, फिर भी उसमें जो भी हमने पढ़ाई किया है तो बेसिक अच्छा है उनका। क्या नहीं खाने का, कौन सा अन्न के साथ किससे झगड़ा होता है, जैसा केला और दूध खा लो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, और इसमें तो हमारी दादी माँ, नानी, मम्मी एक्सपीरियंस लेडी बताती, उनका सुनिए प्लीज़। वो अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से बताती। आपका खान पान कितना हो, आप अकेले के लिए जितना चाहिए। आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर वेट कॉशियस, तो हमको बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए जो वज़न बढ़ाएगा, और न्यूट्रिशियस प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, मल्टीविटामिन भी होना चाहिए उसमें। इसका मतलब थाली के साथ एक फल की ज़रूरी है, एक डेयरी प्रोडक्ट की ज़रूरी है। डालडा, वनस्पति घी इसको अवॉइड करिए, बट गाय का घी तो बहुत अच्छा है। कम से कम 1 चम्मच गाय का घी रोज अगर लेती है तो इट्स गुड फॉर द बेबीज़ ब्रेन एंड द बेबीज़ हेल्थ एंड द शाइनी स्किन एंड द गुड हेयर्स एंड ऑल दैट थिंग। आपको कैलोरी में अगर गिनते हैं, हम खाना कितना खाए तो गिन के हम किलो से नहीं बोल सकते, कैलोरी कितना है। तो पहला 3 महीने में कम से कम 85 कैलोरीज आपको ज़्यादा मिलना चाहिए अपने खुद के रिक्वायरमेंट से। जैसा हम अगला 3 महीना जाता है, ट्राइमेस्टर बोलते हैं हम उसके, 250-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा कर दीजिए। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, इसमें कम से कम 300-350 कैलोरी एक्स्ट्रा कर दीजिए। अब ये सारा खाना एकदम से नहीं होता, क्योंकि फिजियोलॉजी ऐसी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो काम करता है। अब ये अगर स्लो काम करता है तो हमको बार बार खाना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट उतना होना ज़रूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिए, जिसको आप जंक फूड लेबल करते हो, जो नर्सरी में बच्चा भी पढ़ता है, व्हाट इज जंक फूड, व्हाट इज हेल्दी फूड। तो ट्राई टू ईट ए हेल्दी फूड। इफ यू आर टेकिंग ए कोल्ड ड्रिंक, व्हाई नॉट टू टेक लस्सी, व्हाई नॉट टू टेक ए बटर मिल्क, छाछ। फलों का जूस खाने से पूरा फल खा लीजिए, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। फाइबर्स भी छिलका निकालने वाला अगर फल है तो आपको कोई उसको पोल्यूशन भी नहीं होगा। पॉलिश करने वाला है तो उसका वैक्स निकाल दीजिए। अभी बाजार में बेर है, उसको कोई पॉलिश करने वाला नहीं है। करवंद खाते हो तो उसके जैसा कैल्शियम और कहीं नहीं। थोड़ा काला दिखता है, लेकिन नाचनी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। बहुत चीप भी है, बहुत अच्छा भी है। बहुत राइस खाने की इच्छा हो रही तो अपना वरी का राइस जो आता है, जिसको हम भगर बोलते हैं, बहुत अच्छा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम है, ऐसी कोई चीज़ें खा देते। हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो आपको शुगर यूरिन में जाने वाला है, तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो शुगर का थ्रेशोल्ड हमारा थोड़ा कम होता है, यूरिन में जाने वाला है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बेसिक अपना एग्जामिन करते हैं। उसमें हमारा यूरिन टेस्ट और हीमोग्लोबिन हर महीने में, हर विजिट में करना है। आपको एएनसी क्लिनिक में, जो सबके लिए फ्री में अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट, देर आर बहुत सारी योजनाएं, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु योजना, ऐसे बहुत सारी है। उसमें एवरीथिंग इज़ फ्री। केस पेपर से लेके, दवाई से लेके, ट्रांसपोर्ट, ब्लड के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, और घर जाने के लिए वापस। उसके बावजूद आपको 6 महीने का मैटरनिटी फुल पेड लीव मिलता है। हस्बैंड को भी 7 दिन का मिल जाता है। So everybody is being done everything for you. Why don't you do you for yourself? तुम्हारा फैमिली में करना चाहिए। शादी में कितना लोग बुलाया था? वहाँ पे 1000-1500 था। अभी मदद के लिए बुलाओ ना, कि वो पानी नहीं भर सकती या उसको एक माला पानी चढ़ा, उस समय एक का मदद लीजिए। करेक्ट। द पीपल विल कम हैप्पीली इफ़ यू कॉल देम। नहीं तो हमारा सगा सोरा तो रहता है, भाई रहता, बहन रहता, कोई तो मदद करे। कोई नहीं रहा तो हस्बैंड हैज़ टू डू इट। बच्चा उसका भी है, माँ तो 9 महीने पेट में पाल लेगी, बट उसके बाद तो आपको उसको पालना का, उसके लिए खर्चा, पढ़ाई लिखाई, सारा सब कुछ। आप अभी मदद करोगे तो बीमार कम पड़ेगा। बच्चे की अगर बीमारी कम करना है तो माँ का ख्याल रखिए। माँ अच्छी है तो बच्चा अच्छा होने वाला है। जैसा ही उसका डिलीवरी का समय आ जाएगा तो उसमें अलग अलग हम करा देते हैं। ये हाई रिस्क है, इसको बड़े हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये लो रिस्क है, यहाँ वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, वो आपको नहीं डिसाइड करना। और डॉक्टर कहाँ पे डिसाइड करेगा? उसका जो ब्लड का एग्जामिनेशन है, यूरिन का एग्जामिनेशन, वो देख के बताने वाला है। तो डॉक्टर का प्लीज़ रेस्पेक्ट करिए कि किसको कहाँ डिलीवर। नहीं, पहला बच्चा तो मायके में होना चाहिए, डोंट डू दैट। वो बच्चा ज़िंदगी भर आपको संभालने वाला है। मायके वाले खर्चा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, पर खर्चे का सवाल ही नहीं यहाँ पे। इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिलीवरीज आर फ्री। डिसाइड दैट आपको खर्चा करना है तो आप प्राइवेट में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं, बट सी दैट द क्वालिटी इज़ गुड।
डिलीवरी का मोड पहले से डिसाइड कर लीजिए अगर सिजेरियन लगता है, क्योंकि अभी गैजेट इतने अच्छे से आ गए कि अंदर के बच्चे को क्या हो रहा हमें दिखाई दे रहा, उसके दिमाग को कितना खून जा रहा, वो भी हमें उसका पता चलता गर्भजल कितना है, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से कितना खून जा, ये सारा डिसाइड करके हम मोड ऑफ डिलीवरी। नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा ट्राई कर लीजिए ना, तो डॉक्टर साहब का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बच्चा आपका खराब है। जब एकदम डिस्ट्रेस आ गया कि बच्चे का ठोका कम हो गया, अभी हम सिजेरियन का तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चा कांच के पेटी में जा रहा, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। सो डिसाइड अर्लियर कि ये बच्चा नॉर्मल होना है। जी। हम तो थोड़े पुराने ज़माने के लोग हैं, हमारे इसमें कैसा था कि अगर बच्चा पैर से है तो वो डिलीवरी करना हमारे टीचर ने पढ़ा आर्ट है, आर्ट इन द साइंस। तो हमने किया कई सारे, बट कई सारे बच्चे को खींचते खींचते उसका हाथ लुला फुला हो गया, क्योंकि बच्चा तो डिलीवरी करना ही है हमारा। बच्चे का वज़न मालूम करने के लिए हमारे ज़माने में सोनोग्राफी नहीं था, आज आपके लिए सुविधा है। बच्चे का वज़न समझता है, बच्चे का शोल्डर कितना बड़ा है और कोई बीमारी है, ये सारा समझ जाता है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर डॉक्टर, कोई डॉक्टर बुरा नहीं होगा, आपका बुरा नहीं बताएगा। एंड अदरवाइज यू हैव चॉइस ऑफ सेकंड डॉक्टर आल्सो, यू कैन टेक सेकंड ओपिनियन कभी भी ले सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत डिलेड सीजरियन करने से अच्छा है डिसाइड करके करो। सीजरियन का रेट बढ़ रहा, आपको लगता है डॉक्टर ने पैसे के लिए बढ़ाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बढ़ रहा है, जहाँ पैसा नहीं लगता वहाँ भी बढ़ रहा है। रीज़न इज़ दैट कि बच्चे को क्या धोखा होने वाला है, माँ को क्या तकलीफ होने वाले, उसका जो बर्थ कैनाल है वो फटेगा तो नहीं है या ठीक से खुल, ये सारा भी मालूम पड़ रहा, विज्ञान बहुत आगे गया। सो ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट, टेक द ओपिनियन ऑफ अनदर डॉक्टर एंड गो हेड फॉर द डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी अच्छा है तो बच्चा एनआईसीयू में नहीं जाएगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बच्चा प्रीमैच्योर निकले, या ब्लड प्रेशर का बीमारी या कुछ है तो बच्चे को कमज़ोर निकालना पड़ेगा हमें। करेक्ट। बट पेट में वातावरण खराब है, आगे नहीं बढ़ सकता तो ही निकालते हैं, फिर एनआईसीयू में उसका केयर करेंगे। तो माँ का आप अगर खान पान का अच्छे से ख्याल रखोगे, और खान पान इनफ नहीं, उसका जो वातावरण है, उसका जो इन्वायरमेंट है, वो बच्चे पे बहुत असर करेगा। इसीलिए हम गर्भ संस्कार के क्लासेस हमारे हॉस्पिटल में होती हैं। तो गर्भ संस्कार में सीखिए आपको क्या पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीवी सीरियल चालू है, उसमें ऐसा टीवी सीरियल आप देख रहे हैं जिसमें आपके इमोशंस कम ज़्यादा हो रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब आपका एड्रेनलिन कैटेकोलाइन रिएक्ट कर रहा है। इसमें ख्याल रखिए कि जो आनंददायक हो देखिए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि खाली गीता ही पढ़ो या भगवान का ही पढ़ो, वट एवर यू लाइक, बट इट इज़ यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इमोशनली सो मच दैट योर कैटेकोलामाइंस विल इंक्रीज। सो टेक केयर ऑफ दैट, वट एवर यू लाइक यू डू इट, बट मोड ऑफ डिलीवरी ऐसा ही डिसाइड होगा। इसके बाद हम प्रेगनेंसी में जब भी केयर करते हैं, उस समय माँ अकेली नहीं, हम ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसे है कि हमारे पास 2 लोगों को देखना है, बच्चे को भी देखना है, माँ को भी देखना है। तो बच्चे का खान पान का अभी से ख्याल रखोगे। द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा होगा कि द वुमन कंप्लेंट ब्रेस्ट में थोड़ा फुलनेस लग रहा, थोड़ा पेनफुल लग रहा, मीठा मीठा सा दर्द हो रहा। व्हाट डज इट मीन? हम जैसे पिकनिक जाते तो पहले खान का डब्बा का सोचते हैं, अभी ज़माना थोड़ा बदल गया। आपके ज़माने में होटल बुकिंग हो जाता है, वहाँ मिल जाता है, हम लोग तो पहले अपना टिफ़िन कैरी करने वाले थे। तो बच्चे का दूध बनने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो चाहिए, वो भगवान ने सब बनाया है। द बेस्ट मॉडल क्रिएटेड बाय द गॉड इज दिस। जितने भी यंग वन को जन्म देते हैं, मतलब इनको मेमल्स बोलते हैं हमारे जूलॉजी की भाषा में, उन सब के लिए, स्तन्य प्राणियों के लिए दूध की व्यवस्था पहले से है, इट्स इनफ। भगवान ने इसमें कहीं ही गलती किया नहीं है, सबको दूध आना ही है, अनलेस अंटिल देयर इज एक्सट्रीमली समथिंग, जैसा बहुत सारा खून गया तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो हाइपोथैलेमस, उसमें परेशानी आ गई। बट ये करोड़ 42 साल में हमने एक भी नहीं देखा है, खाली पढ़ा है लिटरेचर में। 42 ईयर के एक्सपीरियंस में इतने सारे जगह मैं घुमा हूँ, कहीं भी हमने ये शिहान सिंड्रोम नहीं देखा है, पिट्यूटरी फेल्यूर नहीं देखा है कभी, क्योंकि इतना ब्लीडिंग होने नहीं देते। शायद कभी किसी घर में डिलीवरी हो जाती होगी, उस समय ट्रांसफ्यूजन उसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसा है। अगर बच्चा या माँ आईसीयूज़ में है, मेडिकल इंटेंसिव केयर में है, तो यही बात है। अदरवाइज एवरी चाइल्ड हैज ए फर्स्ट राइट। आई वॉज वन ऑफ द फैकल्टी इन लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज। लोकमान्य ने बोला, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज,
हर बच्चा यही बोलता है कि माँ का दूध तो मेरा जन्मसिद्ध हक है, मुझे वो मिलना ही चाहिए। अच्छा। हम तो गाँव खेड़े में पढ़े हैं ना, वहाँ क्या सुनते हैं, जो बच्चे झगड़ते हैं तो बोलते हैं माँ का दूध पिया है तो आ जाओ सालों, गाली देते, सॉरी फॉर दिस, बट ऐसा होता है। अभी कैसा ज़माना आ गया, अभी हम देख रहे हैं, लैक्टोजन पिया है तो आ जाओ, कैसा लगता है ना। सो अगर फार्मूला मिल्क पीते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते, जो बोल नहीं सकते वो क्यों करना चाहिए। ये फार्मूला मिल्क थोड़ा सुविधाजनक है कमर्शियल लोगों के लिए, उनको उनका फार्मूला बेचना है, उनको उनका बॉटल, तो ये इंडस्ट्री करोड़ों में चलती है विथ प्रमोशन। बी कॉशियस कि हमारा या हम इसमें ऐसा नहीं सेक्रीफाइस नहीं करें कि उसका दूध अच्छा है, इसका हर स्पेसीज का, जैसे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो या चूहा हो, अपने स्पेसीज के लिए ही उसका दूध बना है, उसका जो कंटेंट है वो अपने स्पेसीज के लिए बना है। उसमें भी माँ अपने बच्चे के लिए दूध ऐसा बनाती है कि जिसमें हम बोलते हैं हाइंड और बैक। तो पहला पहला जो दूध निकलेगा बहुत गाढ़ा रहेगा, सबसे पहला जो दूध आएगा उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो येलो होता है, सोने के जैसा होता है। कोलेस्ट्रम होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है, इसलिए सोने के जैसा दिखता है। वो वेस्ट नहीं करना, वो गाढ़ा दूध में इतनी कैलोरीज होती है कि बच्चा आराम से 1-2 दिन पी सकता है। बच्चे का पेट कितना है, हमारे अंगूठे के इतना या उसके माँ के अंगूठे के इतना, उसको हम पिलाते जाएंगे फार्मूला मिल्क, तो गड़बड़ होना चाहिए। थोड़ा सा डॉक्टर को डर है कि वो हाइपोग्लाइसेमिक ना हो, उसका शक्कर कम ना हो, नॉर्मल बच्चे का नहीं होगा। जो माँ को डायबिटीज़ था उसका हो सकता है, उसका अगर ख्याल रखना है। तो हर बच्चे का अधिकार है कि माँ के गोदी में ही रहे, स्किन टू स्किन। अपना कंगारू देखा, अपना बच्चा तो अपने गोद में रख देता है। हम ह्यूमन बीइंग, वो वेस्टर्न लोग का देखे हैं कि उनका क्रेडिट अलग, बच्चे का कमरा अलग, तो ऐसा करने लगे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा जैसे ही जन्म लेगा माँ के टेम्परेचर के साथ रहेगा, उसको स्किन टू स्किन टच रहेगा, जिसको कंगारू, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। तो ये 90s 2000 के दरम्यान तो बहुत सारा प्रमोट किया गया कंगारू केयर। बच्चे को माँ का अगर वार्म मिलता है तो कभी बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। जैसे बहुत ठंडी के दिन है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, तो माँ को स्किन टच करके अगर बच्चे को आप रखते हो तो बहुत ही अच्छा है। जब भी चाहिए उसको दूध मिल सकता है। जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी हो गए, इमीडिएटली बिफोर कटिंग द कॉर्ड उसके छाती पे रख दीजिए। बच्चे को हाथ क्लीन नहीं करने का, क्योंकि बच्चे का नाक बहुत अच्छा है, ही नोज द स्मेल ऑफ अवर लाइकर, जो पानी था ना गर्भजल, उसका सेम स्मेल उसका एरियोला का और निपल का होता है। और बच्चा अपना क्रॉल करके, नंदुरबार में किसी ने ऐसा रिकॉर्ड करके यूनिसेफ के वेबसाइट पर डाला है कि बच्चा अपने आप गर्दन उठाएगा, अपने आप वो चल के, वो कैसा चलता है, तो बच्चा अगर उल्टा डाल दिए तो पैर हिलाता है, जैसे ये बच्चा है तो ये पैर, ये अगर छाती पे रख दो उसके, और थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, हेल्पर तो चाहिए। तो ये बच्चा ये पैर ऐसा मोड़ता है, फिर लगाता, पैर मोड़ता है, लिखता, तो उसमें यूट्रस को स्टिमुलेशन होता है, प्लासेंटा जल्दी निकल जाएगा, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा जो पिट्यूटरी है ना, ये पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करता है, ऑक्सीटोसिन भी देता है और प्रोलैक्टिन भी देता है। जैसे ही प्लासेंटा आ गया, प्रोलैक्टिन रिलीज होना है, तो ये बच्चे को स्मेल आ रहा निपल का, एरियोला का, तो बच्चा अपना गर्दन खुद उठा के, बच्चा गर्दन खुद उठा, चाहे तो आप कभी भी बेबी क्रॉल का वीडियो यूनिसेफ पे देख सकते हो। पहला फीडिंग होना चाहिए 30 मिनट के अंदर, अगर फीडिंग करते हो तो एवरीथिंग इज़ ओके, क्योंकि जिसमें जो माँ का जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स देती है दूध में, वो पहले 12 घंटे में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। बेबी का जो रिफ्लेक्सेस है, उसका जो रूटीन रिफ्लेक्स है या जो भी रिफ्लेक्स है, उसके पहले 4-8 घंटे में बहुत बढ़िया रहते हैं। 1 घंटे के अंदर करोगे ना, अगर बच्चे के हाथ में आप हाथ दे के देखिए, बच्चा पकड़ लेगा, तो दैट इज़ ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। बच्चे को यहाँ हाथ लगा दीजिए, बच्चा ऐसा देके उसको दूध पीने के लिए करेगा, तो ये उसको ख्याल रखना चाहिए। अगर बाइट लगा अपना सीजेरियन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो somebody should help। ऑन द टेबल ऑल्सो वी हैव डन, उनको पीपीएच बिल्कुल नहीं हुआ। ये डिसर्टेशन हमने कराया है बच्चों का, 3 साल जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिया है कि सीजेरियन में भी आप स्पाइनल में करते हो, सीडेशन अगर नहीं देते तो बच्चों को पिला सकते हैं। करेक्ट। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो देने से बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, वो 4 ही ड्रग हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन जैसे अगर है, कैंसर के लिए जो ड्रग देते हैं, बस वही चीज़ है। बाकी कोई भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, इंक्लूडिंग HIV, क्योंकि HIV का अपना नेशनल प्रोटोकॉल ऐसा है
कि उसको 3 ड्रग देते हैं तो उसका CD4 या वायरल लोड बहुत कम हो जाता है, और बच्चे को नेवरापिन भी देते हैं, तो Correct. HIV में भी जिन्होंने अपना दूध पिलाया वो बच्चे सब अच्छे हो गए। जिसने खाली टॉप फीड मिलाया उनको निमोनिया ज़्यादा हो गया। ये पब्लिश रिपोर्ट है सारे ऐसे। जिन्होंने अगर आधा आधा पिलाया, अपना भी पिलाया, ऊपर का भी पिलाया, उनका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो बहुत नाजुक होता है, उसमें एडिमा आ जाता है और बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो हमें जो बात की थी न्यूनेटल डेथ रेट उसमें ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी बीमारी है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, मास्क पहन लीजिए, हैंड वॉश करना ज़रूरी है। हिपेटाइटिस अगर आपको है तो बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हो। ऐसा कोई भी ऐसा बीमारी नहीं एक्सेप्ट यू आर इन ICUs, तो वहाँ बच्चे को नहीं ले जाते। बट अगर उसमें ऐसी व्यवस्था की अभी, एंड गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि सब मेडिकल कॉलेज को मिल्क बैंक की ज़रूरी है, NMC का रिक्वायरमेंट है। सारे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम पुराने लोग ऐसा करते थे कि वेट मदर होती थी, मौसी, नानी, दादी कोई तो भी बच्चे को पिलाती थी। लैक्टेटिंग मदर वेयर देयर इन द हाउस समवेयर। नहीं हुआ तो दादी जो है 50 साल की मेनोपॉजल, वो भी पिलाने से दूध आ जाता था उनको। दीज आर अवर एक्सपीरियंसेस, वी हैव सीन इट, और यू कैन स्पीक टू एनी ऑफ योर ओल्ड पर्सन, दे विल टेल कि हाँ हमने पिलाया था उनको। तो मिल्क ऐसा है। अभी क्या हुआ, सरकार है कंपलसरी, गवर्नमेंट ने किया है कि मिल्क बैंक रहेगी, वहाँ डोनेशन मिल्क का ही होता है, पाश्चराइजेशन होता है, बिंदास वो दूध दीजिए, लेकिन प्लीज़ 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 डब्बे का दूध, फार्मूला मिल्क को बंद कर दीजिए। वी हैड वन कंसेप्ट इन 90s, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। हम लोग बेबी एनिमी नहीं है, लेकिन उस समय कंसेप्ट आया था बेबी फ्रेंडली। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास रिटर्न पॉलिसी हो, क्या करना चाहिए, सबको ट्रेनिंग देना चाहिए, सबको बताना चाहिए, इंक्लूडिंग सर्वेंट, स्वीपर, सबको, और बिल्कुल दूध अलग का नहीं होना चाहिए। बहुत ही जब जरूरी होगी, मदर नहीं है तो उसको पिलाने का ये एक पॉट दिया है। समझो बच्चे को, समझो पैलेट का कोई परेशानी है तो उसको ट्यूब से देते हैं। एक्सेप्शनल केस में हाँ, ये जो मिल्क आएगा अपना मिल्क बैंक का, वहाँ से आप मंगा सकते हो, वो फ्री में मिलेगा आपको, और आप जमा भी कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा दूध है। बहुत सारी माएँ बोलती मुझे दूध नहीं आया, दूध कम है। ये अपना मन का भ्रम है, भगवान ने उतना ही नब दिया है जितना बच्चे को चाहिए, और तीसरे चौथे दिन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है वो एडजस्ट करते करते। यहाँ जैसा ही बच्चे का ये अगर निपल को लग जाता है या बच्चे की याद भी आती है, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ है कि जो हमारा रिफ्लेक्स चालू कर देती है। ये रिफ्लेक्स ऐसा है कि बच्चे का जैसा ही यहाँ टच हो गया माउथ को, ठीक है, या बच्चे की याद भी आ गई, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वहाँ से वो प्रोलैक्टिन देती है। हमारे पास ऐसा टंकी थोड़ी है दूध का, जैसा हमारे माउथ में है कि हम खाना अच्छा अगर खा ले तो सलाइवेशन चालू हो जाता है, हम खा लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बच्चे का मुँह लगेगा तो मिल्क ग्लैंड उसको मिल्क सिक्रेट करेगी और ऑक्सीटोसिन उसको खींचेगा, और बच्चे का जो सकिंग पावर है बहुत अच्छा है। लकी इनफ उसके बाजू में ऑक्सीटोसिन भी है, वो यूट्रस को ब्लीडिंग भी नहीं होने देगा, मतलब कोई PPH से भी मरने वाला नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो रिफ्लेक्स को दबाने वाली चीज़ है वो है आपका इग्नोरेंस, आपको मालूम ही नहीं, आप कन्फ्यूजन में हो, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या कहीं आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा पेन हो रहा, तब ऐसे रिफ्लेक्सेस थोड़े दब जाते थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं, या आई कैन फीड माई बेबी, दिस इज़ माई बेबी, इट रिक्वायर माई मिल्क ओनली, बच्चा मेरे जैसे ही हो, मेरे से होशियार हो, ये कॉन्फिडेंस है। अगर पेन है तो हम पेन किलर दे देते, कभी कभी एपिजोड में पेन हो सकता है, पेन किलर देते। बट आप अगर चिंता करती है, संकोच करती है, तो दूध का थोड़ा सा मात्रा कम है तो पहला बच्चा पिलाइए। जब भी बच्चा पीता तो क्या होता है एग्जैक्टली कि उसका जो माउथ है, जो लीप है उनका, वो पूरा काला जो पार्ट है एरियोला, इस एरियोला को पूरा कवर कर सकता है। ये जो ब्लैक पार्ट है इसमें ब्रेस्ट का मॉडल है ये तो यहाँ पे निपल इज 8, जैसा अपना पानी का टैप होता है वहाँ पे, और यहाँ पे साइनस में मिल्क जमा रहता। जैसे ही बच्चा ऐसा शकल करेगा, ये हमारा ऊपर का जो माउथ का पैलेट होता है और उसके नीचे जो टंग होता है, तो क्या करता है, ये हमारा जो पैलेट है, ये बच्चे का टंग उसको ऐसे निकालता है, ये ऐसे निकालता है, और उसके लिए उसका मास्टिकेशन मसल बहुत बढ़िया होता है। अगर 1 मिनट का 2 मिनट का भी बच्चा है, 10 मिनट का भी है, तो भी ये रिफ्लेक्स उसके पास है। वो पेट में प्रैक्टिस भी करता था, कभी सोनोग्राफी में देख लिया था, हम चूज़ करता है बच्चा।
उसको जो आनंद आता है थंब चूज़ करने में, वो अगर निपल चूज़ करता है तो माँ के भी हार्मोन अच्छे निकलेंगे, उसको पीपीएच भी नहीं होगा और उसको कॉन्फिडेंस रहे कि उसके मेरा बच्चा मेरे पास, अगर वही बनी रहता, अगर करंट में बच्चा है तो कोई चुरा तो नहीं लेगा, मेरा बच्चा एक्सचेंज तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं इसमें। कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा डॉक्टर का ये काम है कि ये अगर निपल बाहर नहीं है तो प्रेगनेंसी में उसको समझाए कि हाथ से वो अपना निपल बाहर नहाते समय निकाल दे। अगर वो निपल अच्छे से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको एक बार एग्जामिन करना है और एग्जामिनेशन में आपको यही देखना है कि ये जो निपल है हमारा वो अंदर तो नहीं दबा, तो बच्चे को पीने में तकलीफ हो जाएगी। बच्चे को पीने में तकलीफ होएगी, दूध तो आपका बन रहा, तो दूध अंदर के अंदर रह जाएगा, वहाँ पे जैसा दूध का दही जैसा बन जाएगा, वो एक आने वाला जो डक्ट है वो ब्लॉक कर देगा, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एब्सेस हो जाएगा, विच इज़ ऑल अवॉइडेबल। आप उसको कोशिश करिए कि वो दूध ना रहे, उसमें एक्स्ट्रा है तो निकाल के फेंकिए। कभी कभार हमारा ये निपल निकालने के लिए कुछ हम मेथड करते हैं ऐसा, तो बेस्ट मेथड है अपना हाथ से निकालें और नहाते समय निकालिए, दैट इज़ ऑलवेज बेस्ट। अगर वो पॉसिबल नहीं है आपको और आप हॉस्पिटल में हैं तो नर्सेस कभी कभी ऐसा करती कि 20 सीसी वाली एक सिरिंज लेती, मतलब निपल से थोड़ी सी बड़ी, और उसको एक लैटेक्स ट्यूब होता है आईवी सेट में जो जाता है उसको, और उसको खींच लेती। इसके पहले हमारा ऐसा था उसको काटते थे हम सिरिंज को, तो काटने के बाद सबके हाथ को लगता है, निपल को लगता है, ऐसा नहीं करिए प्लीज। सिरिंज मेथड एकदम लास्ट है, अपना फिंगर सबसे अच्छा है और उससे भी अच्छा है बच्चे का माउथ। करेक्ट। बच्चे का माउथ दीजिए, उसमें सक्शन आ जाता है, वो पिएगा। आप पिलाएगी नहीं, शुरू में रखेगा ऐसा कि हमारा ऐसा खराब, ऐसा कोई नहीं खराब, हर एक का अपने बच्चे के लिए सब सही है। करेक्ट। कितना पिलाओगी? जब तक बच्चा पिएगा तब तक, वो जब तक, उसमें क्या है, हमारा जो नाक है और माउथ है ये यहाँ क्रॉस हो जाता है, तो हम जब पीते खाते हैं तब सांस नहीं ले पाते, सांस लेना ज़रूरी है, तो बच्चा बीच में दूध पीना बंद कर देगा, सांस लेगा, फिर पिएगा, आपको लगेगा उसका हो गया, नहीं, अगर उसका दूध पीना हो गया तो अपने आप छोड़ देगा। अगर वो अपने आप नहीं छोड़ता है, आप अगर बच्चे को ज़बरदस्ती दूध से बाहर निकालती तो ये निपल सोर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको ही तकलीफ होने वाला है। अगर चाहती है आपकी, सपोज डोर बेल तो किसी ने डोर लगाया, आप अकेले घर में है, दूध पिला रही थी और बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं, तो क्या करने का, उसके माउथ के बाजू में ऐसा अपना फिंगर रख देगी तो कन्फ्यूजन से वो छोड़ देगा, फिंगर पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा पुल नहीं करिए, उसमें निपल ख़राब हो जाता है। बच्चे को कैसा पकड़ने का, कभी कोई बोलता है ये पोजीशन है, इंडियन पोजीशन है, क्रिकेट पोजीशन है, फुटबॉल, बहुत सारी पोजीशन है, आपके लिए वही पोजीशन कंफर्टेबल है जो आपको कंफर्टेबल है। आप आराम से बैठिए, हो सके तो नीचे एक पिलो ले दीजिए, ये हमारा जो एल्बो है वहाँ बच्चे का सर रख दीजिए और ये जो हाथ है उसमें उसका बटॉक्स को पकड़ लीजिए, हो सके एक फिंगर ऐसा पकड़ोगे तो दूसरा हाथ आपका फ्री है। हमने ऐसा भी देखा है हॉस्पिटल में, कभी कभार बच्चे को पिला रही, बच्चे को दूध पीना है, बेचारा ऐसा गर्दन पकड़ के सब करके पीते रहेगा, फिर उसकी गर्दन दुखेगी, रोएगा ना, तो बच्चे का पेट हमारे पेट से लग रहे। निपल का सिचुएशन ऐसा भगवान ने बनाया कि बच्चे को आराम से मिल जाता है, आप थोड़ा कवर कर दीजिए, बच्चे को अच्छे से प्यार से देखिए, दैट विल गिव योर इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, माँ की तबीयत अच्छी हो जाएगी, माँ को पिरपिरेंट व्यूज़ नहीं आएगा, साइकोसिस नहीं होगा, वो अपने को बच्चे को देख के वो पहचान पाता है बच्चा उसको और ये इसको। कोई भी ऑर्गेनिज्म तुम्हारे शरीर का बच्चे को धोखा नहीं करने वाला है। बच्चे जो गेस्ट आते हैं, बच्चा वो हम देखने चले, वो सारा इन्फेक्शन आते, प्लीज़ उनको बोलो कि ऐसा ना करें। अगर बच्चा आ गया तो माँ को, अगर समटाइम व्हाट हैपन कि वी आर यंग वन, वी कैन नॉट से टू ऑल ओल्ड पीपल कि तुम नहीं आने का, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाने का, अभी सोया है, अभी उठाएगा तो रोएगा, लोग समझ जाते हैं। प्यार से बोलिए, गुस्सा नहीं करिए। गुस्सा तो बहुत आता है जब बच्चे का कोई गाल पकड़ता है, बोल नहीं सकते, थोड़ा बोलने का कोशिश करिए, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा है, उसका गाल आपके नाखून कैसे है, आप कहाँ कहाँ हाथ लगा के आ रहे हो। बच्चे को इन्फेक्शन होना है तो बी कॉशियस अब। और हेल्दी बच्चा टॉलरेट कर लेगा, कमज़ोर रहेगा, वजन कम रहेगा तो नहीं करेगा, या वो हेवी लोड ऑफ इन्फेक्शन अगर लेके आता है। कोरोना ने बहुत अच्छा किया, लोगों को बता दिया सैनिटाइज़र, लेकिन जब घर में बच्चा है तो आप सैनिटाइज़र रखिए, साबुन से हाथ धोइए। हाँ, ब्रेस्ट को कभी साबुन से नहीं धोने का, खाली नहाते समय एक बार, क्योंकि पुराने ज़माने में प्रीमैच्योर यूनिट में वो ब्रेस्ट वॉशिंग था,
अभी हमने बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो भी स्किन है उसमें जो ऑयल आता है वो सोप के कारण खराबा हो जाता है। जैसे ही बच्चे को रूटिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा, उसका जो माउथ है तो अपर लिप और लोअर लिप है ये पूरा ब्लैक पोर्शन करेगा, उसको बोलते हैं गुड लैचिंग। लैचिंग अच्छा रहेगा, बच्चा पिएगा, बीच में सोएगा, सांस लेगा, पिएगा। उसका पेट कैसा भरेगा मालूम पड़ेगा आपको, तो बच्चा खुद होकर छोड़ देगा। आपको रात को सोने का है लंबा, तो आप उसको लंबा दूध पिलाइए, तो जो पीछे वाला मिल्क होता है उसमें फैट थोड़ा ज़्यादा, हम नहीं क्या आइसक्रीम खाते तो दैट इज़ मोर फैटी वन, तो इसलिए उसको लंबा सोएगा। लंबा मीन्स कितना, 2-2.5 घंटे के बाद बच्चा उठने वाला है। मैक्स टू मैक्स आप 3 घंटा राह देखिए। 3 घंटा अगर बच्चे को कुछ नहीं मिलता है तो समथिंग रॉन्ग, उसका शुगर कम हो सकता है। बच्चे को दूध चाहिए, बच्चा कैसा बताएगा, बोलता है बच्चा, सही में बोलता है। कैसा करेगा वो कि अगर उसको भूख लगा तो नींद से जाग के पहले मम्मी को ढूंढेगा, कहाँ दिखता है। उसकी आँख बहुत तेज़ होती है, उसका नाक उससे भी तेज़ होता है, मम्मी का स्मेल आता है उसको बराबर, तो ही विल ट्राई टू सी। उसके बाजू में अगर कुछ नहीं दिखा उसको तो फिर ऐसा आवाज़ करता है बच्चा, ऐसे टंग निकालता है कभी, और उसके बावजूद भी मम्मी ने नहीं सुना, देर ही ट्राइड क्राई, तो लास्ट है। आप वॉच करिए, बच्चे को जब भी दूध पाइए तो पिलाना चाहिए। समझो आपको कोई दवाई मिल रही है, आप सीरियस हो गए, या बच्चा सो रहा है, तो कभी कभी गहरी नींद रहती किसी की, तो जब भी 2.5 घंटा 3 घंटा हो गया तो आप बच्चे को उठाए। कैसा उठाएगी, बहुत लोगों ने बोला उसको मारेंगी, बिल्कुल नहीं मारने का, मारना बहुत गलत है, नहीं तो बुढ़ापे में आपको मारेगा वो, देखा है आपने, ठीक है। तो उसको क्या करेगी, बड़े प्यार से उसको उसका सारा एक एक उसका वस्त्रहरण करेगी, कपड़ा निकालेगी, ठीक है। बच्चा थोड़ा जाग जाएगा। ये भी नहीं हुआ, ये बच्चा जो बांधने का तरीका है ना, ये खाली बॉम्बे में है, बाकी कोई शहर में या बहुत सारे शहर में बच्चे को बांधते नहीं। क्यों बांधते पता नहीं, लेकिन जब मेरे बच्चे हुए तब ऐसा लोगों ने, माँ जी ने बताया था हमारे, कि बच्चा सिक्योर फील करता है बांधने के बाद। गॉड नोज, मुझे तो कभी सिक्योर नहीं लगा ऐसा, बट उसको अगर ऐसा खोलते हैं बच्चे को तो बच्चा जाग जाएगा। इससे भी नहीं जागा तो इसको भी खोल दीजिए, थोड़ा ठंडी हवा की लहर आ जाएगी, बच्चा उठ जाएगा। नापी भीग गई तो भी बच्चा उठना है। बच्चे का रोने का कारण बहुत है, नापी भीगी है, माँ नहीं दिख रही, या कुछ हो गया तो भी, उसके बाद भी नहीं जागा तो उसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा करिए, बच्चा बड़ी बड़ी आंखें खोल देगा। लेकिन ऊपर अगर ट्यूबलाइट है तो नहीं खोल पाएगा ना, तो लाइट बंद कर दीजिए, उसका आँख अंधेरे में रखिए, या रोज सवेरे में उसको धूप दिलाने का है, धूप में भी जहाँ से सूरज है वहाँ उसका आँख नहीं आएगा, तो बच्चा ऐसा प्यार से रहेगा। बच्चे को पकड़ने का तरीका तो हमने बता दिया, ऐसा करके आप पकड़ सकती हो, पिलो ले सकती हो, कुर्सी में बैठ सकती हो। कभी किसी को लगता है कि अभी क्या उठने का, तो अगर आपको नींद नहीं आ रही तो सो के भी पिला सकती हो। बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि माँ को नींद लग गई और ये जो जितना भी ब्रेस्ट है उसका नाक को दबा दिया, तो नाक नहीं, इतना केयर करना चाहिए घर में, फैमिली मेम्बर का भी तो फर्ज बनता है। एक बार बच्चे का पीना हो गया, छोड़ दिया उसने, तो अभी क्या करोगे, प्यार से बच्चे को कंधे पे लेने का और उसको पीठ पे थोड़ा थपथपाने का, तो बेबी विल टेक आउट ऑल द एयर वॉट एवर ही हैज सक्कल्ड। ये 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप ऐसा नहीं करती है और बच्चे को रख देती है तो गैस के कारण उल्टी कर सकता है, उल्टी बच्चे के फेफड़े में जा सकता, तो ये बर्पिंग करना बहुत 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 ज़रूरी है। आपको चाहिए कि बच्चे को पेट में ना दर्द हो, तो गैस आगे जैसा जैसा जाएगा ना तो कोलिक देगा, तो बी कॉशियस, बच्चे को पिलाने के बाद बर्पिंग करेंगे। बच्चे को हमारा दूध के सिवा दूसरा कुछ नहीं चाहिए, इससे फुल डाइट, फुल लिक्विड, पानी की भी ज़रूरी नहीं है। शहद लोग देते थे पहले, वो आयुर्वेदिक में लिखा है कि उससे ओम लिखना चाहिए, बहुत अच्छा है, इट्स ए रेडीमेड शुगर डायरेक्टली गोज इन द ब्लड। लेकिन ये अगर शहद आपको प्योर नहीं मिलता तो आप इन्फेक्शन दे रहे हो बच्चे को। अगर कोई माँ जी बोलती है कि नहीं मैं शहद गाँव से लाई, इतने प्यार से लाई है, तो माँ जी को एक सवाल पूछ लीजिए, माँ जी ये शहद बनता कैसे है, तो ये झाड़ पे मक्खी बनाती है, झाड़ पे तो शायद नहीं लगता। व्हाट दे डू, दे गो टू द फ्लावर, टू फ्लावर, अलग अलग फ्लावर थे, वहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट वो लेके आते, वो कैसा लाएंगे, हम हाउस फ्लाई पढ़े थे, वो अपना सलाइवा वो थूक देते हैं वहाँ पे और थूक सक कर लेते हैं और जमा करते हैं और हमारे बच्चे को पिलाया, माँ जी समझ जाएगी, बिकॉज उसने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा कि वहाँ तो। लेकिन ऐसा कोई शहद पिलाना गलत हो जाएगा कभी,
बाजार में अभी मार्केट है, कभी गुड़ मिलेगा, क्या मिलेगा, बच्चा ख़राब नहीं करता। बच्चे को पानी की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में इनफ वाटर है, इनफ कैलोरीज है, इनफ विटामिन है, मिनरल है। तो माँ को खिलाइए, आपको क्या करना। डिंक लाडू, मेथी लाडू वॉज अवर कंसेप्ट, दैट इज़ ट्रू बिकॉज इन कंटेंट ऑल मोटल। कड़वा लगता है इसलिए नहीं खाती, कड़वा तो खाना चाहिए, ज़रूरी होता है। उसमें मिठास के लिए गुड़ भी डाल देते हैं, तो ये ज़रूरी है। कम से कम 6 महीने को अपना ही दूध पिलाइए, पूरा लीव लीजिए, सारे काम बाजू में रखिए, बच्चे का केयर करिए, तो ज़िंदगी भर आपको अच्छे से संभालेगा, आपका बुढ़ापा भी अच्छा जाएगा। जल्दी काम करने के लिए जाना है तो आगे पछतावा ही पछतावा होगा। जैसे ही बच्चा अपना 4 महीने के ऊपर हो जाता है, 6 महीना हो सकता है, तो हमारे घर में जो चीज़ें बनती है, हमारी फैमिली जो खाती है, उसको ही जरा नरम बना के उसको थोड़ा थोड़ा सा खिलाइए। एकदम पतला नहीं पिलाओ पानी, जो हमारा चम्मच से ऐसा पानी की जैसे गिरे ऐसा नहीं, थोड़ा धीरे धीरे सेमी सॉलिड जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें बच्चों को क्या खिलाने का है, हमारे घर में जो बनता है। स्पेशली जो बेबी फूड आते हैं वो लिखा है सब है, लेकिन उसकी ज़रूरी नहीं, हमारे फैमिली में वो चलता नहीं है। उसको तीखा नहीं चलेगा, तीखा नहीं दो, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं दो, और बॉटल को तो अवॉइड करो। बच्चे को उसके बाद भी दूध चाहिए तो आप दे सकती हो। कितने साल पिलाने का, दैट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू। कई लोग 5 साल भी पिए, बट कम से कम 2 साल तो पिलाना चाहिए। इसी समय हमें ये सोचना है डिलीवरी के पहले पहले हमें अगला बच्चा कब चाहिए। जब हम थोड़े पढ़ने वाले बच्चे थे तो हमारे टीचर से सुनते थे, MTP इज ब्रेड एंड बटर फॉर अस। अभी तो ब्रेड भी गया, बटर भी गया, हमारे को MTP मिलता ही नहीं कभी, जो मिला बहुत जल्दी से मिल जाता है। और MTP करना भी क्यों है, यू प्लान यूर लाइफ। आपके प्लानिंग में अगर ऐसा है कि हमारा बच्चा भी 4 साल की चाहिए, कभी नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस 10 ईयर का कॉपर। गवर्नमेंट ने भी ट्रिपल लाइगेशन और जो वसक्टमी है उसको कम किया, क्योंकि मॉर्टेलिटी थी, मॉर्बिडिटी थी, वो ऐसे लोम्बार्ड उसको गवर्नमेंट को ही खा गया, इंश्योरेंस का पैसा चले गया। तो बोलते हैं कि PPICD डालिए, 10 साल चिंता नहीं, 388A, और उससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे ट्रायल हो गए, बहुत सारे पब्लिकेशन, उसके बावजूद दिस इज कैफेटेरिया चेंज। जैसे आप कैंटीन में जाके बोलते नहीं आज बड़ा पाव नहीं खाने का, समोसा खाने का, यू हैव योर चॉइस। आप इंजेक्टेबल ले सकते हो, खाली स्टेरॉइड नहीं लीजिए क्योंकि दूध कम करेगा। प्रोजेस्टेरॉन पील है हमारे पास, नॉन हार्मोनल पील है हमारे पास, इंजेक्टेबल है, इम्प्लांट्स है, रिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें। बट यू प्लान योर प्रेगनेंसी। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होने का ये ज़माना नहीं है। सो यू टेक केयर ऑफ योर बेबी, यू विल हैव ए वेरी हेल्दी, वेल्दी एंड नाइस चाइल्ड। विश यू ऑल दिस सोसाइटी टू बी वेरी हेल्दी, नाइस चाइल्ड। ऐसा हो कि बच्चे भी हेल्दी हो, इंटेलिजेंट हो। CET में मार्क कम क्यों आए, बच्चा बोलेगा मम्मी तुमने खिलाया नहीं था इसलिए नहीं आया मुझे। ऐसा परेशानी नहीं होना चाहिए। फादर को बोलेगा अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुमने कमाया क्यों नहीं। ऐसे बच्चे बोलते हैं भी कि वर्क यू हैव डन फॉर मी। तो उसको हेल्दी बनाओ, उसका दिमाग अच्छा रहे कि पापा को उल्टा ना बोले। और जो हम संस्कार देते हैं वो गर्भ से ही चालू होते हैं, लेकिन गर्भ के बाद भी होते हैं। हमारा अचीवमेंट हम गिनते कैसा है कि हमारा इंडिया का जो भी मॉर्टेलिटी रेट था, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, अंडर 5 मॉर्टेलिटी, कम तो आ रहा है। वी आर हैप्पी दैट वी आर नियर अबाउट 20 और 30 के बीच में है, तो वी आर डूइंग बेटर। गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग बेटर, द पीपल आर ऑल्सो प्लानिंग हैविंग ए लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अच्छे से खर्चा होके न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है इसका, तो बी हैप्पी, क्योंकि मदरहुड के जैसा आनंद और किसी में नहीं। यू कैनॉट परचेस ऑल दिस थिंग विथ योर मनी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, लोग शादी लेट करते हैं, बच्चे प्रेशियस होते हैं। PCOD इतना बढ़ गया, बच्चा होना भी मुश्किल है। IVF से अगर बच्चा कर दिया, पहले ही खर्चा कर दिया, तो प्लीज़ डू सो मच दैट आगे चल पे उससे खर्चा ना हो। इसलिए कृपया उस पर ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। बच्चा बाहर आने के बाद भी आपका ख्याल रखना है, तो उसको संस्कार अच्छे मिल जाएंगे, उसका हैबिट अच्छा हो जाएगा। नहीं मुझे तो काम जाने का है, तो मोबाइल ले ले, खेल ले, बच्चा है सब सीख जाएगा, खेल देगा ऐसा। बट उसके बाद जो उसका चश्मा लगेगा तो आप चिंता नहीं करने का उसके लिए, वो होना है, बिकॉज यू हैव डन इट। यू आर बिजी इन योर मोबाइल, आपका ऑफिस का कॉल आ गया, आप उसके सामने बोल दो अरे पापा घर में नहीं है। झूठ बोलना तो घर में हमने सिखा दिया, ऐसा नहीं करिए। सो बच्चे के छोटे दिमाग में बहुत असर हो जाता है। पापा झूठ बोल रहे हैं मतलब ये सही है, हम भी झूठ बोलना शुरू कर दें। तो गुस्सा नहीं करने का, मेरा बच्चा झूठ बोल रहा या फोर्स सिग्नेचर कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। So it all depends on you, how you care before pregnancy,
during pregnancy, after pregnancy, and child rearing thing. This is one of the your job only. You cannot avoid it. Whatever the busy you are in the life, all the best. थैंक यू सो मच सर, हमने आपसे इतना कुछ सीखा कि एक्चुअली इतना आपने कवर किया कि मुझे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अगर जाते जाते सर आप कोई और एक संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे तो विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर यू। दर्शकों को हम यही कहना चाहते हैं, मेरे माँ बाप, बच्चा आपका है, बच्चा समाज का है, बच्चा देश का है। हम लोग इस इरा में हैं, हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा अभी, और पोस्ट कोविड तो खास करके बहुत ही आगे गया। हमारा इतिहास भी बहुत अच्छा है, जितने ऋषि मुनि हैं हमारे कंट्री से ही तो सारा जीरो निकला है, मैथमेटिक्स आ गया, लोग अपने स्पेस में चले गए। सो प्लीज़ ये हमारी विरासत को भी सही रखिए, बच्चे पे ख्याल रखिए, प्लान प्रेगनेंसी करिए। शादी अगर जल्दी करते हो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जो हमारी सोच है अभी हम शादी के लायक नहीं हुए, थोड़ा गलत है। क्योंकि शादी के बाद जब बच्चा चाहिए तो देन वी आर गोइंग टू और IVF तो हर गली में निकल रहा है अभी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अवर क्रिएटेड। जब भी आप रहते हो प्लीज़ हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी यू नो वेरी वेल, हम खाई खाई में कुछ तो भी खा लेते। खाने का एक तरीका पता है हिंदुस्तान में कैसा खाए? आराम से समय पे खाए। जब भी हम खाना खाते तो भगवान का या वो उसको अनाज को धन्यवाद करें कि कितने सारे लोगों का उसमें हाथ लगाए तब मेरे थाली में आया। उसको वेस्ट भी नहीं करिए। हेल्दी खाना खाओ, थोड़ा रोज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दिमाग भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा। अदरवाइज़ तो हम डॉक्टर लोगों का पेट भरने वाला है, आप बीमार होंगे तो भी भरेगा ना। तो हेल्दी रहिए। हाँ, मेरा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, मैं तो हेल्दी लोगों को ही देखता हूँ, फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी। सो प्लीज़ ट्राई टू बी हेल्दी, हैव ए गुड हैबिट। रात को 11 से 5 अगर सोओगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड सब बढ़िया काम करने वाला है, वियर टियर शरीर का निकल जाएगा। अब प्लीज़ बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों पे दोष नहीं दीजिए कि उसने बेकार किया, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरी एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पास जो भी आते हैं उनको ये सही सलाह दें। करेक्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच Wish you सर, all the best. इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू, इनफैक्ट हियरिंग यू। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज सच अ प्लेजर।